حاضر ہیں ہم اردو دنیا کا نمبر 1 ڈیبیٹ شو. آج کا مدعا ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسلام اس دنیا میں ہر طرح کی برائیوں کو ختم کرنے آیا تھا، لیکن المیہ، ٹریجڈی یا وڈمبنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ دیکھیے کہ جو مذہب آیا ہی تھا توہم پرستی یعنی کہ کریتیوں کے خلاف، وہی برائیوں اور توہم پرستی کا شکار ہوتا چلا گیا. اب لوگ کہنے لگے ہیں کہ اسلام سب سے بہترین مذہب تو ہے، لیکن مسلمان سب سے بدترین قوم ہے. اسلام کچھ کہتا ہے، مسلمان کچھ کرتے ہیں. اسلام کا پیغام کچھ ہے، مسلمانوں کا کام کچھ ہے. رسول اسلام کی سیرت کچھ ہے، مسلمانوں کی صورت کچھ ہے. اللہ کے دین کو ایک طرح سے ملا کا دین بنا دیا گیا ہے. لہٰذا ضرورت ہے کہ سماج میں پھیلے اس فرق کو مٹایا جائے اور صحیح تصویر پیش کی جائے. ناظرین، زی سلام نے آپ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ مہم شروع کی ہے، اور اس میں ہر روز رات 8 بجے ہم اس پروگرام میں ایک مدعے پر تفصیل سے بات کر رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے، دین اسلام ہے، مکمل دین، حق دینے والا دین، شاندار دین ہے. لیکن کچھ سماجک برائیوں کو لوگ مذہب سے جوڑنے لگ جاتے ہیں. اب آج کا یہ مدعا ہم نے جو لیا ہے وہ مسلم خواتین کو لے کر کے ہے. مسلم خواتین مسجدوں میں نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں اور درگاہوں میں اندر جانے پر ان کو پابندی کیوں ہے؟ قرآن اور شریعت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ایسی کوئی سیدھی ممانعت تو نہیں ہے، پر بر صغیر یعنی کہ ہم انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ ملک جو ہیں، ان ملکوں میں یہ مناہی کیوں ہے اور بہت سے لوگ اسے سیدھے مذہبی ہدایت کیوں مان بیٹھے ہیں؟ ہندوستان میں ہی ہم اگر دیکھیں تو اس کے لیے ہندوستان کے سپریم کورٹ میں بھی ایک بھارتی مسلم جوڑے نے عرضی داخل کی تھی پچھلے دنوں. یہاں خواتین کو مسجدوں میں داخل ہونے اور مرد حضرات کے ساتھ نماز پڑھنے کا حق دیا جائے، یہ اس عرضی میں کہا گیا ہے. لیکن یہ تو ایک سماجی مساوات کو لے کر بات ہو گئی. ہم لیکن یہاں پر اس پروگرام میں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. حدیث کی روشنی میں بھی دیکھیں تو صحیح بخاری بھاگ 1 حدیث نمبر 825 میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ عورت کو مسجد جانے سے مت روکو. تو اب ایسے میں اس معاملے کو سماجک طور پر ہم کیسے دیکھیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور سماج کیا کر رہا ہے، تو پھر بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ بہت اچھا ہے کہ اس پروگرام میں آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں. لگاتار آپ کے کمنٹس زی سلام کے فیس بک پیج پر آتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے جب میں فیس بک لائیو کر رہا تھا تو آپ بہت سارے سوال رکھ رہے تھے. کل بھی آپ نے بہت سارے سوال رکھے. کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، مخالفت بھی آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم تمام لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں، رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں ہم تمام لوگ مل بیٹھ کر کے جو مسئلے ہیں جن پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اب وقت کی ضرورت ہو گیا ہے، اس پر کیوں نہ ہم بات کریں. ہمارا مقصد یہ ہے، کسی پر سوال اٹھانا نہیں بلکہ چرچا کرنا، بات کرنا ہے اور آگے کی طرف دیکھنا ہے. تو میرے 5 سوال جن کے ارد گرد ہماری چرچا گھومے گی. آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ زیادہ تر مسلم خواتین مسجدوں میں نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. اتنی مسجدیں ہیں، ہم ہندوستان کی بات کریں، لیکن مسلم خواتین کے لیے کہاں کتنا انتظام ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. کیوں نہیں جاتی ہیں وہ خود بھی، اور سماج ان کو کیوں نہیں بیدار کرتا ہے یا آگے بڑھاتا ہے اس سلسلے میں؟ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سوال، خواتین کے درگاہ پر جانے پر پابندی کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں خانقاہ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا اندر آنا سخت منع ہے، ایک لمٹ کے بعد لکھا رہتا ہے، تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. تیسرا سوال، شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے؟ اس پر بھی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا سوال، اس معاملے پر کیا سوچتی ہیں خود مسلم خواتین؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا آج کا 5واں سوال ہے کہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں مسجدوں میں باقاعدہ مسلم خواتین نماز ادا کرتی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایسا ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے، اس وجہ کیا ہے؟ اس تمام چیزوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ مسلم خواتین کی، کچھ دانشوروں کی بات بھی سناؤں. وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر، اس معاملے پر، وہ سنیے پھر آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مدرسے کہ جہاں مردوں کے ساتھ تعلیم نہ ہو، عورتوں کا، بچیوں کا وہاں جانا، عورتوں کا وہاں پڑھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہ گیا مسجدوں کا سلسلہ، جانے آنے کا، 5 وقت نمازوں میں عورتوں کا جانا، یہ چیز آج کل کے زمانے میں منع ہے. اس لیے کہ آج فتنے کا زمانہ ہے،
اور عورتوں کا مسلسل 5 وقت اور فجر کے وقت اور عشاء کے وقت آنا جانا رہے گا، جبکہ شریعت نے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے ازواج مطہرات کو، نبی کی بیویوں کو، وقرن فی بیوتکن، تم لوگ اپنے گھروں میں رہو۔ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے سب کچھ بدل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا مدرسے میں یا درگاہوں میں یا کہیں بھی جانا درست ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، کہ جاؤ اپنی والدہ کے مزار پر جاؤ۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ مہیلائیں مدرسوں میں جائیں، ضرور جائیں، شریعت میں کوئی مناہی نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، تعلیم دینے کے لیے جائیں۔ مسجدوں میں جائیں، مسجد میں بھی جا سکتی ہیں، مگر اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں مدرسوں میں بھی جانے کے لیے اور مسجد میں بھی خاص طور سے جانے کے لیے۔ کنڈیشنز یہ ہیں کہ ایک تو ان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، پاک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر پردوں کا اہتمام ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مہیلاؤں کو بہت ادھیکار دیے ہیں شریعت نے۔ نہ تو مسجد میں آنے کے لیے، نہ درگاہ شریف میں آنے کے لیے عورت کی منع دی ہے، پر مین بات ہے پردہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حرم شریف میں چلے آئیں، مدینہ شریف کے اندر عورت مرد ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور شریعت کے حساب سے کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے پاس تو ابھی اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آئی کمیشن کے پاس، لیکن اگر شکایت آتی ہے تو کمیشن اس کو گمبھیرتا سے لے گا، چونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس طرح پروشوں کا ہے اسی طرح مہیلاؤں کا ہے، اور ان کو دھارمک جگہوں پہ جانے سے نہیں روکا جا سکتا، اور روکا جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب مکے میں ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مکے کا جب طواف کرتے ہیں تو ایک ساتھ کرتے ہیں، مسلم عورتیں بھی کرتی ہیں اور مسلم مرد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو سب ساتھ پڑھتے ہیں، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، یہ ٹھیک ہے کہ تھوڑا دوری رہتی ہے ان کی، لیکن وہ ساتھ پڑھتی ہیں نماز، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کہیں پر کوئی روک لگا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ وہ تو ہمارے اللہ کا گھر ہے، جب جی چاہیں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ سکتے ہیں، اور ہمارے سعودی عرب لوگ عورتیں جاتی ہیں، حج کرنے جاتی ہیں، عمرہ کرنے جاتی ہیں، تو وہ بھی تو ہمارے اللہ کا گھر ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی کٹھنائی کا سامنا کیوں کرنا پڑے گا، لوگ 1-2 لاکھ روپیہ لگا کے سعودی عرب جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو کوئی کٹھنائیوں کا سامنا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی علماء حضرات کو بھی آپ نے سنا، دانشوروں کو بھی سنا، میں اور بھی لوگوں کی باتیں آپ کو سنواؤں گا پروگرام میں ہی، لیکن آپ نے دیکھا کوئی بھی اس بات کی مخالفت نہیں کر رہا ہے۔ جب مخالفت ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر پابندی کیوں یا جانا کیوں نہیں چاہ رہی ہے، کیوں نہیں انتظام کیے گئے لے جانے کی، یہی تو بڑا سوال ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ مذہب میں کوئی روک نہیں ہے، قرآن کریم کچھ نہیں کہتا ہے اس معاملے میں، رسول اللہ کا کوئی ایسا پیغام نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 824، اس میں تو اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلم خاتون رات کو بھی مسجد جانا چاہتی تو انہیں مت روکو۔ تو ہندوستان کی اگر ہم تاریخ کے پنے الٹیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کو شروع سے منع کیا گیا تھا۔ مسجدوں میں خواتین کی عبادت عام بات رہی ہے، کچھ مسجدیں تو خواتین کے لیے ہی بنائی گئی تھی الگ سے، اور یا تو پھر مسجدوں میں جنانہ عبادت خانے رہے ہیں۔ اور ابھی بھی ہندوستان میں بہت سارے فرقے ہیں، شیعہ فرقہ ہو، بہرا فرقہ ہو، اور بھی فرقے ہیں جہاں پر خواتین جاتی ہیں۔ اور سنیوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ اسی کو لے کر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے بھائی۔ یہاں پر ہمارا مقصد یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں علماء حضرات بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ جائیں، اس میں کوئی برائی نہیں، خواتین جائیں، لیکن اور جو احترام ہے اس کو تو کرنا ہی ہے، وہ تو سبھی کرتے ہیں، باقی دھارمک استھلوں پر جانے والے بھی اپنے اپنے طریقے سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو پھر دقت کیا ہے؟ صبحی خان، میں سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا، لیکن پہلے تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت صبحی خان صاحبہ جڑی ہوئی ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، لگاتار سماجک کارکن کے طور پر اپنی پہچان بنا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت محمد افضال صاحب بھی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، مسلم راشٹریہ منچ کے آپ قومی کنوینر ہیں، اور یہ مسلم راشٹریہ منچ وہی ہے جو کہ RSS کی سرپرستی میں چلنے والی مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، بڑی تنظیم ہے دیش کی۔ میرے ساتھ اس وقت عبد المعید اظہری صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، آپ کی پڑھائی لکھائی مصر کی
अजहर यूनिवर्सिटी में हुई है, अल अजहर यूनिवर्सिटी में, और आप एक बड़े इस्लामिक दानिश्वर के तौर पर, नौजवान इस्लामिक दानिश्वर के तौर पर उभर रहे हैं और प्रैक्टिकल इस्लाम को लेकर, सूफिज्म को लेकर के बहुत सारी बातें आपसे जानने समझने को मिल सकती हैं। और मेरे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी स्टूडियो में तो नहीं है, मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक सुलझे हुए आलिम दीन के तौर पर आप जाने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मैं सुबह आप ही के पास आना चाहूँगा। देखिए, समाज का नज़रिया आपने देख लिया, कोई मना नहीं कर रहा है कि ख़वातीन का इस्लाम में मैं बार बार कह रहा हूँ कि मस्जिदों में जाना गलत है, ये कोई नहीं कह रहा है, ना ऐसी कोई मुमानत है। तो फिर हमारे इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप में ये इंतजाम क्यों नहीं है? ये आप लोगों को अखरता नहीं है? जी इमरान, जैसा आपने बोला, अभी आपने कुछ सही बुखारी की 2 हदीसें बताई, उसके अलावा जितने भी लोगों के जो हमारे जानकार हैं, कुछ मौलाना एंड लेडीज़ एंड काफ़ी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये बोला कि औरतों का मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है। और मैं ये और मेंशन करना चाहती हूँ कि जो अर्ली इस्लामिक टाइम था, उस वक्त पे मर्द, औरतें और बच्चे सब लोग सेम मस्जिदों में ही नमाज पढ़ा करते थे, और वो आगे भी प्रिवेलेंट रहा बहुत मस्जिदों में। इनफैक्ट मस्जिद अल हराम जो काबा को एनक्लोज करती है, वहाँ पे आज तक प्रैक्टिस है कि वहां पे औरतें मर्द सब लोग साथ में नमाज पढ़ते हैं। ये बात और है कि हाँ, ड्रेसिंग मॉडेस्ट होनी चाहिए, ये सब जो कंडीशंस हैं वो किसी भी धार्मिक स्थल पे, आप किसी भी पंथ के धार्मिक स्थल पे जाइए तो मॉडेस्टली ड्रेस करना हर जगह बताया गया है। ये जो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, इस पे मैं जरूर एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए, कंफ्यूजन इसलिए स्टार्ट होता है कि टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और कल्चरल प्रैक्टिसेस, इन दोनों चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस्लामिक सोसाइटी में भी बहुत कबीले हुआ करते थे, हर कबीले की अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। कोई भी प्रैक्टिस बहुत लंबे टाइम तक चलती है तो लोग उसको धर्म मानने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए, हमें मुसलमानों को स्पेशली ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में इस्लाम क्या है। जो कुरान में लिखा है वो इस्लाम है, जो प्रॉफिट मोहम्मद की डायरेक्ट टीचिंग्स हैं, सुन्नत हैं, वो इस्लाम है, और कुछ ऑथेंटिक हदीस इस्लाम है। हमें मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि बहुत सारे हदीस भी फैब्रिकेटेड हैं। बहुत सारे हदीस, बिद्दत वर्ड क्यों आया? बिद्दत वर्ड इसलिए आया कि जो एक्चुअली में इस्लामिक टीचिंग्स है, उसमें जब इनोवेशन हो गई, लोगों ने अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीप प्रैक्टिसेस इनोवेट कर ली, तो बिद्दत वर्ड आया। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने तलाक बिद्दत का देखा था कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का इस्लाम में, कुरान शरीफ में कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं था। लेकिन हजरत उमर के टाइम पे जब अरब ने, जो सोल्जर्स ने सीरिया, इराक, इजिप्ट ऐसी कंट्रीज पे आक्रमण किया, तो वहां की वो खूबसूरत लड़कियों की ब्यूटी को देख के कैप्टिवेट हो जाते थे। तो उनसे शादी करने के लिए उन्होंने अपनी बीवियों को एक ही बार में 3-3 तलाक बोल के छोड़ना शुरू कर दिया। तो एक पेट्रियार्कल प्रैक्टिस सोल्जर्स के द्वारा निकाली गई, जिसका इस्लाम से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, उसको लोगों ने इस्लामिक टीचिंग से जोड़ लिया। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत जल्दी देना चाहती हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विमेन्स राइट्स के लिए, मुझे लगता है कि शायद पहले ऐसे प्रॉफिट रहे होंगे जो औरतों के हक के लिए बहुत लड़े हैं। 7th सेंचुरी में अरेबिया में महिलाओं के बहुत लिमिटेड अधिकार थे। प्रॉफिट के टाइम पे छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। वो पहले इंसान थे जिन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया। लड़कियों के लिए उन्होंने ये बोला कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। उस टाइम पे क्योंकि सोल्जर्स होते थे, वॉर्स होती थी, लोग बेटों को होना बहुत अच्छा माना जाता था, तो वो जगह जगह जाके मैसेज देते थे, बापों को बोलते थे कि अगर कयामत के टाइम पे आपकी बेटी आपके लिए अच्छा बोलेगी तो आप जन्नत में एंटर करोगे। फीमेल इन्फेंटिसाइड को उन्होंने रोका। और आप जो जिक्र कर रही हैं उसमें ये बात है ये कि हजरत खतीजा जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, एक बिजनेस किया करती, बिजनेस वूमन थी। हजरत ज़ैनब जिन्होंने शहादत इमाम हुसैन का पैगाम आम किया बेखौफ होकर के, वो एक बड़ी बात थी। और हजरत सुमैया जैसी खातून हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम उन तमाम लोगों को भूल जाएं। लेकिन ये क्या हो गया? सुबह आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन बड़े सगीर की मैं बात करूं, मैं फिर अपने समाज पर आ रहा हूं। हमारे समाज में ये क्या हो गया? मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं कि यहां पर ये पाबंदी क्यों? देखिए दिक्कत क्या है सुबह ही कि वो मन में भी वो भाव नहीं था कि करना है। देखिए मस्जिदों में है ना इंतजाम किया गया ना कि अगर आप अलग से रास्ता बनाइए मस्जिदों में औरतों के दाखिल होने का, अलग से गेट होना चाहिए मस्जिदों में औरतों के दाखिल होने का। लेकिन जब ज़हन ही नहीं है तो वो करें क्या? वैसी मस्जिदें ही नहीं बनाई गई, कितनी मस्जिदें बनती हैं या बनाई जा रही हैं, लेकिन क्या ये इंतजाम करने की कोई कोशिश करता है? तो वो ज़हन ही नहीं है, तो ये ज़हन क्यों नहीं पैदा हो रहा है? इमरान, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपके मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपका सवाल एक्चुअली प्रॉब्लम की रूट तक जाता है। देखिए प्रॉब्लम यही है कि
कि इस्लाम को, स्पेशली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस्लाम को कुछ लोगों ने, कुछ धर्म सत्ता जिनको चलाने वाली मैं बोलती हूँ, उन लोगों ने इस्लाम को हाईजैक कर लिया है। मुसलमान बच्चे को मायने से कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, उसको अरबिक में रटवा जरूर दिया जाता है, लेकिन उसको कुरान की वर्सेस के मायने भी नहीं बता जाते। जिसको कहते हैं कि अल्लाह का इस्लाम लोग भूल गए हैं, मुल्लाओं ने इस्लाम को इतना हाईजैक कर लिया है। कुछ आलिम, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आलिम्स की जरूरत नहीं होती है, इंटरप्रेटर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो भी एक्चुअली सही मायने में एलिजिबल, समझदार, इस्लाम के जानकार होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अपनी एक प्रभु सत्ता और अपनी एक धर्म सत्ता चलाने के लिए एक पैट्रियार्कल एक सिस्टम सेट कर लिया है। कुरीतियों को भी वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस बता बता के इस्लाम को बदनाम करते हैं। ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब के पास जाना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, आप सुन रहे हैं बातचीत को, मेरा भी आपसे सवाल है कि जब कहीं कोई मनाही नहीं है तो बर्रे सगीर में क्यों नहीं मस्जिदों में ख़वातीन नमाज पढ़ती हैं? मैं, आप कहीं पढ़ती हैं, कुछ फ़िरक़ों में पढ़ती हैं, कई जगह के आप हो सकता हवाले भी दे दें, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बड़े पैमाने पर, आम तौर पर क्यों नहीं, और इसके लिए मस्जिदों में इंतज़ाम ही क्यों नहीं किए जाते? सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने में मर्द और औरतें ये सारे एक साथ नमाज पढ़ा करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब ज़माना गुजरा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, जो रसूल की बीवी हैं, जिन्होंने इस्लाम को हमसे, हमारी बहन सुबूही से और सारे लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा और लोगों तक पहुँचाया है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि औरतों, मेरी बहनों, तुम मस्जिदों में नमाज के लिए ना जाओ, खल्त मल्त का खदशा है। क्योंकि उस जमाने में मस्जिदें छोटी हुआ करती थी और मर्द औरत के लिए 2-3 सफ़े होती थी, जिसमें एक ही सफ में दोनों को खड़ा होना होता था जी, जो कि बहुत ही क्योंकि उस जमाने में आपने कहा मस्जिदें छोटी हुआ करती थी। अब मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ, बर्रे सगीर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि एक से बढ़कर एक मस्जिदें हमारे पास हैं, और एक से बढ़कर एक बड़ी मस्जिदें हमारे पास हैं। छोटी मस्जिदों की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी मस्जिदें हैं जिनमें बहुत जगह है, उनमें भी क्यों नहीं है इंतजाम? सुनिए ना, बस ये बातें जब सामने आई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के इस कौल को ये समझ लिया गया कि मस्जिद में औरतें ना जाएं। हालांकि पाक मसाजिद इस बात की जिम्मेदारी के साथ अलग मस्जिद में एक खाना बनाया जाता है, एक हिस्सा होता है लेडीज फॉर लेडीज ओनली। तो ऐसी सूरत में वहां पर नमाजें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आज हमारा समाज इस बारे में सोच रहा है, तो खल्त मल्त के लिए मनाही है इस्लाम ने, शरीयत में खल्त मल्त, यानी एक औरत खड़ी है, दूसरे मर्द खड़ा है, एक औरत खड़ी है, दूसरा मर्द खड़ा है, इस सूरत के लिए मनाही है। या आगे के सब में मर्द खड़े हैं, पीछे के सब में औरतें खड़ी हैं, या उसके पीछे और मर्द खड़े हैं, ये खल्त मल्त की मनाही है। इसलिए चाहिए कि वो लोग जो खल्त मल्त से मना फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असहाब इकराम ने, तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम खल्त मल्त से बचें और ऐसी मस्जिद में औरतों के लिए एक अलग मखसूस इंतजाम हो जहाँ पर पर्दे के साथ में वो साइड में नमाज पढ़ सके। कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये होना चाहिए। समाज का अंदर में अल्लाह रसूल की बारगाह में जुड़ने का, सजदा रेज़ होने का हर एक को इख्तियार है, और वो आती है, बात पढ़ती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके साथ। ज़िया साहब आ रहा हूं। मुफ्ती साहब, आपने सुन लिया मोहम्मद अफजाल साहब जी, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अरे तो होना चाहिए अफजाल साहब, आप तो समाज के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं। मैं जब इस पर थोड़ी देर पहले फेसबुक में लाइव करता हूं या कल मैं अपने मुद्दे बताता हूं, तो बहुत सारी नाइख्तलाफी वाली बातें भी सामने आती हैं, बहुत लोग हार्ड लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, और वो कहते हैं कि तुम क्या बताओगे, तुम तो गलत बता रहे हो, ऐसा है नहीं। कहने का मतलब ये है कि मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सब हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इंतजाम क्यों नहीं? मेरा तो सवाल ही वही है ना। और समाज क्या कहता है? आप तो समाज के बीच में, समाज क्या रिएक्ट करता है जब आप लोग ये बात कहते होंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी, मतलब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुबह ही कह रहे हैं, और हज़रत मौलाना भी फरमा रहे हैं, मुफ्ती साहब फरमा तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो उन्होंने जो बात कही थी, हमारी उम्मुल मोमिनीन थी वो, तो उन्होंने अगर ये बात कही थी, तो उसके आज तक मस्जिद नबवी में भी और मस्जिद हराम में भी, आज मस्जिद हराम में तो, मस्जिद नबवी में तो औरतों के लिए अलग से बाकायदा इंतज़ाम है, लेकिन मस्जिद हराम के अंदर, काबतुल्लाह के अंदर औरतों के लिए कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है। अगर तवाफ़ करते करते जहाँ पे भी वक्त मिल जाए, एक औरत है, एक मर्द है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर मिजाज है, ये बात सही है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो था ना, वो जो सफ बना करती थी, उसमें सबसे पहले वो जो कहते हैं ना, जो बालिग मर्दों की, और उसके बाद बालिग औरतों की, फिर नाबालिग जो है बच्चों की, है जी, मतलब बालिग मर्दों की, फिर नाबालिग बच्चों की, फिर उसके बाद बालिग औरतों की, फिर नाबालिग बच्चियों की। तो इस तरह से ये सब बना करती थी, जो इसके ऊपर कोई तो ये सिस्टम था। और ये असल क्या है, बर्रे सगीर की जो वो वाली बात तो क्योंकि बहुत सारी हो गई है, लेकिन असल मकसद है बर्रे सगीर में हिंदुस्तानी महाद्वीप के अंदर क्यों नहीं है। हाँ, वही सवाल ये है, हमारा समाज क्यों नहीं अभी तक इसको एक्सेप्ट कर देखिए पाया? मुद्दा ये है कि हमारे हिंदुस्तानी समाज में कहीं ना कहीं हमारे उलमाओं ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। इस बात को हमारे उलमाओं को मानना चाहिए। और आप जैसे समाज सेवक क्या करते रहे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, भी तो इतनी बड़ी तंजीम चला रहे हैं। नहीं, आप क्यों नहीं? आपको भी खौफ है क्या? आप नहीं, खौफ है कि समाज ये मामला ऐसा, मतलब इस मामले में ऐसी क्या बात है कि लोग जो है आप पे जो चढ़ बैठे? नहीं, आप तो हदीस की रोशनी में बात करेंगे, आप तो कुरान की रोशनी में बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए एक बात सुनिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हर इमाम को, हर मौलाना को हफ्ते में एक बार मिंबर पे खड़े होकर वाज करने का वो जो है ना मसाइल बताने का एक मौका मिल जाता है। जबकि हम लोगों को जो है ना, हम लोग मजहबी मामले में नहीं, हम समाजी कारकुन हैं। तो ये तो बड़ा समाजी मामला है। अब सुन, क्योंकि मजहबी मामला है ही नहीं, हम लोग साबित अभी कर चुके हैं। उलेमा हजरात ने भी कहा, और सब लोग कह रहे हैं कि मजहबी मामला है ही नहीं। नहीं, मजहबी मामला नहीं है, समाजी है, लेकिन ये समाजी मामला है। लेकिन हमारे उलमाओं ने जो, देखिए क्या है, औरत जो है पहले ही उसको बच्चों के अंदर इतनी उलझी रहती है वो, और हमारे उलमाओं ने कभी इस बात की जिद नहीं करी। या हमें उलझी रहती है क्या मतलब, वो बेवकूफ है? क्या कहना चाह रही है आप? वो उसको अकल नहीं, क्या करना चाहिए? आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर? मेरी किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ मैं? किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ? औरतों में क्यों कह रहे हैं उलझी रहती हैं? वो अपने काम में उलझी रहती हैं, और हमारे मर्द उलझाए रखते हैं। आप जैसे लोग उलझाए रखते हैं, मैं कह रहा हूँ आप जैसे लोग उलझाए रखते हैं। उनको ये उसको अपने फिका बताते नहीं, आप फिका बताते नहीं उनको कि भाई ये अपनी बेगम को बताया आपने कभी जाके, क्या आप जो है ना मस्जिद में मेरे साथ चलिए, आप ऊपर अलग से तुम्हारा इंतजाम कराऊंगा। आप मेरे से बात कर रही है, आपको बात करनी चाहिए मेरे से। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बहुत ये चर्चा का विषय है, और इस पर हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए। आप ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अपनी देखिए मेरा जहां तक है, मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, हमारे वहां पे जो भी प्रोग्राम होता है, हमारी कोशिश खवातीनों के लिए अलग प्रोग्राम करते हैं। मैं मोहम्मद अफजाल साहब माजरत के साथ कहूंगा, जो बात आपने सख्त लहजे में उलमा साहब से कही, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, पूरे एहतराम के साथ, कि क्या आपने अपनी बेगम को कभी कहा कि चलो मैं इंतजाम करवाता हूँ साहब से बात करके और मौलाना साहब से बात करके, क्योंकि इस्लाम में तो मना ही नहीं, मौलाना साहब इसको मना नहीं कर सकते। मेरे पास जब भी मौका होता है ना, मैं बड़ी मस्जिदों में, क्योंकि छोटी मस्जिदों में तो हर कोई मेरी तरफ उठा के देगा, मैं जामा मस्जिद में या फतेहपुरी मस्जिद में या और मस्जिदें जो है ना, उसमें अपनी बेगम को ले जाता हूँ, अपने फैमिली को लेके जाता हूँ। नॉट ओनली मैं, नमाज बल्कि मैं अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए, घुमाने के लिए नहीं, घुमाने के। आप रमजान के महीने में तो शाही जामा मस्जिद में तो खवातीन आती हैं, रमजान के महीने में तो खासतौर से आती है, अंदर भी जाती है। नहीं, मैं उसमें से देखिए, हमारे नमाज की बात मस्जिद में देखने के लिए कोई नहीं है। आप फॉर योर काइंड नोटिस के वो जो है नमाज मस्जिद जो है वो घूमने की जगह नहीं है। वो हमारे लिए मुसलमान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, दिल्ली की कोई जामा मस्जिद या फतेहपुरी है, ये बड़ी मस्जिद जो है ना, ये घूमने की जगह नहीं है, ये नमाज पढ़ने की, इबादत करने की जगह है। और मैं अपनी पूरी फैमिली का, यानी अपने पूरी फैमिली, यानी मेरे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के सबको साथ लेके गया हूँ, अक्सर ले जाता हूँ। जैसे जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैंने अपने रसूलुल्लाह की हिकायत को, उसकी रिवायत को मैंने जिंदा कुछ कहना चाह रही, बस मुझे बताइएगा मोहम्मद अफजाल साहब कि फिर क्या उन मस्जिदों में जाकर के आपकी फैमिली की खवातीन ने नमाज पढ़ी बाकायदा? हाँ बिल्कुल बाकायदा जी, बिल्कुल। आप ये समझिए, हमसे वो तो सुनो तो देखिए, पैगाम को आप जैसे बड़े दानिश्वरों को आम करना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, सवाल ये नहीं, मैंने अक्सर डिबेट में मैं इसी बात का मैं चर्चा करता रहा हूँ। नॉट ओनली मैं आपके चैनल पे आया हूँ, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये मैं अक्सर जहां भी जिस भी चैनल पे गया हूं, और मेरी उलमाओं से इसी बात के ऊपर ये होती है कि आप औरतों के हक को क्यों नहीं समझते, उनको भी वहां पर तक लाने के लिए क्यों नहीं कोशिश करते। तो ये सब चीजें, और हमारे बचपन में ऐसा था, हम मदरसे में जब पढ़ने जाते थे तो बच्चियां भी हमारे साथ पढ़ने आती थी, लेकिन आज के दौर के अंदर बच्चियों का अलग मदरसा बना दिया और बच्चों का अलग मदरसा बना दिया। जबकि मस्जिद में मैं जब पढ़ने जाता था तो हमारी जो साथ की जो बच्चियां थी, हमारे साथ
कलाम पाक पढ़ने जाया करती थी। तो ये तो हमने, लेकिन आज के ज़माने में इसमें सख्ती आई है। ठीक है, सुबह कुछ कह दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ अब्दुल मोइन साहब के पास। इमरान, मैं इस पूरी डिबेट का जो सार है मैं आपको प्रॉब्लम बता देती हूँ कि एक पितृसत्ता, एक राजसत्ता और एक धर्म सत्ता, इन तीनों ही सत्ताओं की वजह से इस्लाम बदनाम होता है। इन तीनों ही सत्ताओं की वजह से ये लोग कुरीतियों को आगे प्रमोट करते हैं। कुछ लोग इस्लाम के नाम पे कुरीतियों को इसलिए चलने देते हैं कि ये लोग डरे रहेंगे, हमें वोट देते रहेंगे। कुछ लोग इस्लाम के नाम पे कुरीतियों को इसलिए चलने देते हैं कि ये घर में बैठी रहेंगी, हमारी पितृसत्ता चलती रहेगी। कुछ लोग इस्लाम के नाम पे कुरीतियों को इसलिए चलने देते हैं कि अनपढ़ रहेंगे, जानेंगे नहीं कुरान को, शरिया को, तो ये मौलानाओं और मुल्लाओं का मुंह देखते रहेंगे, तो उनकी धर्म सत्ता चलती रहेगी। और सबसे ज्यादा शर्म की बात हम लोगों को, स्पेशली पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए मुझे लगती है कि ये सब कुछ होता है प्रॉफिट के नाम पे। मैं तो कहती हूँ जो उनके आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जो हम कहते हैं वो बहुत सही है, क्योंकि वो जहां भी होंगे उनको बहुत ज्यादा पीस की जरूरत होगी कि उनके नाम पे उनका धर्म, उनका पंथ कितना बदनाम हो रहा है। प्रॉफिट ने एक बात बताई है, कितने एक्सप्लिसिट विमेन राइट्स एस्टैब्लिश किए हैं उस जमाने में, जो जहां पे बिल्कुल कबीलाइट लोग, बिल्कुल जंगली लोग रहा करते थे, वहां पे वो, मैं कहती हूं कि शायद हिस्ट्री के पहले फेमिनिस्ट प्रॉफिट अगर होंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद रहे होंगे। इनहेरिटेंस राइट्स औरतों को दिलवाना, प्रॉपर्टी राइट्स, सोशल मैरिज राइट्स, कोई निकाह आपको ऑफर कर रहा है तो आपको जो प्रपोजल रिजेक्ट करने का भी आपके पास राइट है। अगर आप एक्सेप्ट भी करनी है तो प्रॉपर अपनी मेहर की रकम सेट करके आप उसको एक्सेप्ट करती हैं उस प्रपोजल को। डिवोर्स इनिशिएट करने का भी राइट औरत के पास था, लेकिन ये लोग सब खा गए, इन लोगों ने, ये लोग सब खा गए क्योंकि सिर्फ इनकी सत्ताएं हिल जाएंगी। तो मैं बोलती हूँ इन सब प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोगों को, जैसे बच्चों को बचपन में कुरान रटाया जाता है, हर जगह कुरान को मायने से पढ़ाया जाए। जो लोग कुरान को मिस इंटरप्रेट भी करते हैं या जो लोग गलत एक इमेज भी बनी हुई है जिनकी नजरों में, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार कुरान को प्लीज जिस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई इमेज बनाइए इस्लाम के बारे में। इन लोगों को देख के बनाइए जो समाज में फैला हुआ। मैं आ रहा हूं, मैं दरगाहों पर भी बात करूंगा, जो हमारी खानकाहें हैं उस पर भी क्यों इस तरह की पाबंदी है, खासतौर से खास जगह पर जाने के लिए, मज़ार मुबारक तक जाने के लिए, उस पर भी बात करने की जरूरत है। लिखा रहता है क्योंकि साफ साफ लिख दिया जाता है, क्यों लिख दिया जाता है, उसके पीछे की वजूहात भी हम तलाशेंगे, ऐसी बात नहीं है, और उसके प्रैक्टिकल वजह हम भी समझते हैं बहुत सारी हैं, लेकिन समाज क्यों नहीं बेदार होता है, इस पर बात करने की जरूरत है।